Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we are going to learn about the new chapter called double entry system. First we will see the introduction of double entry system. According to this system there are two accounts involved in every business transactions. डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से देयर आर टू अकाउंट्स. हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो अकाउंट्स होते हैं. वन ऑफ देम इज डेबिट एंड द अदर इज क्रेडिट. The system is based on dual aspect concept. In the accounting principles chapter, we have learned about this concept. That dual aspect concept said that in every business transaction, there are two aspects, right? So this chapter is based on dual aspect concept. The father of double entry system is Luca Pacioli. Some people pronounce it as a Luca Pacioli. Okay, so Luca Pacioli is the father of double entry system because he is the one who wrote the book on double entry system for the first time. That means he discovered the double entry system. Now let's see the meaning of double entry system. So in question, it may be asked that what is the meaning of double entry system in bookkeeping? Okay, so don't get confused. Double entry system refers to a system of accounting in which every transaction affects at least two accounts simultaneously. Again, it is saying that this system refers to the system of accounting in which every business transaction affect at least two accounts simultaneously. दो अकाउंट एक साथ अफेक्ट करता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग. For example, if the furniture is purchased in the business, then furniture will increase and cash will decrease, because when you purchase a furniture, you have to give cash to the person from whom you are purchasing the furniture, right? So your cash is decreasing, but when you bring the furniture into your business, the furniture, the asset increases. Okay. So this is the example for the double entry system. In every transaction, there are two aspects. Okay, here furniture and cash are the two aspects. Principles or characteristics of double entry system. Now let's see what are the principles or characteristics or features of double entry system. So the double entry system is based on the principle that every debit has a credit and every credit has a debit. हर डेबिट के क्रेडिट होते हैं और हर क्रेडिट के डेबिट होते हैं. Now let's see the features. First is every business transaction affect at least two accounts. ये सारी चीजें हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं. ये सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट चैप्टर है आपके पूरे अकाउंटेंसी में, क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े हैं. फिर उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था. वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी हैं. ठीक है, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. बस आपको एक बार रीड करना है. ओके. So first was the every business transaction affect at least two accounts. Second is recording of both personal and impersonal aspects. In the previous lectures, we have discussed that there are two types of account, personal and impersonal. The impersonal aspect is subdivided into two accounts, that is real account and nominal account. Okay, so basically we have three accounts. So recording of both personal and impersonal aspect. हम अपने ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट को भी रिकॉर्ड करते हैं और इम्पर्सनल को भी रिकॉर्ड करते हैं. ठीक,
It is possible that both the aspect of transaction may be personal or both may be impersonal or one may be personal and the other may be impersonal. Okay, कुछ भी हो सकता है, किसी भी सेट में बन सकती है आपके ट्रांजैक्शन. Recording is made according to certain specific rules. In double entry system, one account is debited and the other is credited. Right? हमने rules of डेबिट एंड क्रेडिट में देखा था कि हर ट्रांजैक्शन में कोई एक चीज होती है जो डेबिट होती है और एक चीज होती है जो क्रेडिट होती है. इट डजंट मीन दैट एनी अकाउंट में बी डेबिटेड एंड एनी अकाउंट में बी क्रेडिटेड. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी अकाउंट को उठा के डेबिट कर दे, कोई भी अकाउंट को उठा के क्रेडिट कर दे. देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग. कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है. Preparation of trial balance. Since one account is debited and the other is credited. ठीक है, हम क्या करते हैं, एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. फिर एंड में सारे डेबिट को हम टोटल करते हैं और सारे क्रेडिट्स को हम टोटल करते हैं. इट शुड बी इक्वल. ठीक है, all the debit is always equal to the total of all the credits. This help in finding out the arithmetical accuracy of the accounting records. इससे क्या होता है कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता कर सकते हैं. एंड दिस इज डन बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस. ओके, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर, देन फिर लेजर में जो भी डेबिट बैलेंस आता है, जो भी क्रेडिट बैलेंस आता है, सबको एक साथ हम लोग लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, जिसकी मदद से हमको एक्यूरेसी पता चलती है अपने रिकॉर्डिंग की कि हमने किस हद तक हमने सही किया है अपने रिकॉर्डिंग को. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेज और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. क्या क्या स्टेजेस होते हैं अंडर द डबल एंट्री सिस्टम? Accounting process can be divided into 3 stages under double entry system. First is original record, then classification, then summary. Okay, so in original record, all transactions are first recorded in primary book called journal. सबसे पहले जो भी transactions होते हैं उसको हम primary book में record करते हैं, जिसे हम कहते हैं journal. फिर क्लासिफाई करते हैं. नाउ द ट्रांजैक्शंस आर ट्रांसफर्ड इन अ क्लासिफाइड फॉर्म इन लेजर. हम सबको अलग अलग क्लासिफाई कर देते हैं इन लेजर. लेजर में मतलब लेजर में होता है कि हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उन सब का अकाउंट हम बनाते हैं. हमने अकाउंट का फॉर्मेट सीखा था. सबका फर्नीचर खरीदा हमने, तो फर्नीचर और कैश दोनों इफेक्ट हुआ ना, कैश डिक्रीज हुआ और फर्नीचर इंक्रीज हुआ, तो हम फर्नीचर का भी अकाउंट बनाएंगे और कैश का भी अकाउंट बनाएंगे. देन लास्ट है समरी. इन दिस वी हैव टू प्रिपेयर 3 थिंग्स: ट्रायल बैलेंस, trading and profit and loss account, then lastly balance sheet. Next is advantages of double entry system. Now let's see what are the advantages of double entry system. First is scientific system. Under this system, the transactions are recorded according to certain specified rules, and as such the system is more scientific as compared to any other system of bookkeeping. Okay, हम इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं. ठीक है, ये साइंटिफिक रूल होता है और इस रूल के बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन को एंट्री नहीं कर पाओगे. ठीक, तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में. So that's why it is very important for any business accounting. Okay. Next is complete record of every transaction. In double entry system, all accounts are divided in 3 parts. That is personal account, real account, and nominal account, right? And both the debit and credit aspect of the transaction are recorded in these. और सारे एस्पेक्ट, कोई भी डेबिट हो या जो भी डेबिट क्रेडिट जो भी है, सब हम रिकॉर्ड करते हैं. तो इससे क्या होता है, हमें कंप्लीट रिकॉर्ड मिलती है अपने सारे ट्रांजैक्शन की. ठीक,
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता तो हम ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना पाते, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। In double entry system, the amount recorded to the debit side of various accounts will always be equal to the amount recorded on the credit side of various accounts. As such, trial balance can be prepared to check the arithmetical accuracy of the accounts. और ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट की, अपने रिकॉर्डिंग की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को निकाल सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारा डेबिट साइड आया है, जो भी हमारा क्रेडिट है, जितना भी है, सबको टोटल करने पे इक्वल आया है कि नहीं। अगर नहीं आया था तो मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो फिर वो जाके वापस से ठीक किया जा सकता है। तो इसे कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। फिर फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस अगर बन गया तो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। इससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको निकालने में इजी होता है। फिर होता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस थ्रू बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं लास्ट में। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हम पता कर सकते हैं। फिर लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। हम इस डबल एंट्री सिस्टम के अंडर we record all the transactions. Okay, it is a complete record of every transaction, so there is a lesser possibility of fraud. And if at all some manipulation take place, it can be easily detected. अगर कोई इसमें छेड़खानी करेगा तो easily detect हो जाएगा, तो इस वजह से हम फ्रॉड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल मतलब अगर हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो ये लीगल होता है, मतलब कि ये लीगल अप्रूवल में आप यूज कर सकते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन अंडर द सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इसके कुछ रूल्स होते हैं और हम अपने अकाउंटिंग में अपने ट्रांजैक्शंस को एक कुछ स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग सब कुछ रिकॉर्ड करते जाते हैं। एज सच द सिस्टम मीट legal requirement and book of accounts maintained under this system are accepted as true and reliable by the Companies Act and various other acts. अगर हम डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रहे हैं तो क्या होता है कि जो कंपनीज एक्ट और जो अदर एक्ट्स होते हैं ये उसके हिसाब से बहुत रिलायबल होता है, बहुत भरोसेमंद होता है ये सिस्टम, ठीक है। और इसको अगर आप कोर्ट में अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं इजीली और उसे लीगल माना जाएगा क्योंकि आपने डबल एंट्री सिस्टम को यूज किया है। फिर है इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये डबल एंट्री सिस्टम। Suitable for all type of business. It is suitable for all type of business, whether it is a small or large scale of business. Okay. Last is comparative study. आप एक कंप्लीट रिकॉर्ड करते रहते हैं ईयर आफ्टर ईयर अपने बिजनेस का, तो आप करंट ईयर को के जितने भी प्रॉफिट या जितने भी लॉसेस हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हो पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस से, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो इससे क्या होगा कि इजी होगा कंपेयर करने के लिए। तो ये डबल एंट्री सिस्टम आपको ये सारे कुछ एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। Now let's see the disadvantages of double entry system. First is quite expensive. Okay, so a large number of books are to be kept under this system. This double entry system require large number of books to keep. Okay, so this system is quite expensive, needs practical knowledge. This double entry system needs practical knowledge. Okay, कोई भी इंसान आके डबल एंट्री सिस्टम नहीं कर सकता, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू
have command over the rules of double entry system. जैसे कि अभी आप लोग हैं, अभी एकदम नए नए हैं, तो हो सकता है आप लोगों को इतना यूज टू ना हो. तो जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग बढ़ती जाएगी, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं अकाउंटिंग के सारे रूल्स को सीखने के लिए, तो आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाएगा. तो आप इजीली डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को प्रोसीड कर सकते हैं. थर्ड इज अनडिटेक्टेबल एरर्स. कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो अनडिटेक्टेबल होते हैं, तो उसको हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो एज इट इज हमारे अकाउंट में रहेगा. ठीक, बहुत सारे एरर्स होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि आप अभी मत जानो, कंफ्यूज हो जाओगे. आप लोग जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे. तो अनडिटेक्टेबल एरर्स को हम हटा ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ एरर्स भी हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं. ओके, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. This chapter, as I've told you all, this is the shortest chapter, so we have completed this chapter in one lecture only. So kindly note down all these things and read it once thoroughly. So thank you, students. Have a nice day.